Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती हैं. वानी मैम वहाँ पे motivation करती हैं, आप लोगों से interact करती हैं. All of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. Nitrogen, phosphorus, potassium are macronutrients. There are some other nutrients which are, which are the micronutrients. The macro we need in more content. Micro हमें कम चाहिए होता है. What happens when the nutrients are less? Does overdose also of the nutrients does something? All of these form a very important topic called mineral nutrition, which is a very important topic of plant physiology. Let's move ahead and chalo. Let's do it in much more detail. Come on. चलिए. So let's come to mineral elements at a glance. आज की क्लास में हम mineral elements शुरू करते हैं. तो क्या क्या minerals होते हैं? Macronutrients are the ones which are majorly required for a plant to grow. वो सारे nutrients जो मुझे plant में ज्यादा चाहिए so that the plant grows are called macronutrients. इसके बाद एक macronutrient nitrogen की मैं आपको cycle भी कराने वाली हूँ. It's a very important class. I can guarantee 12 marks because one question 100% will come from nitrogen cycle. It's a very important class. So mineral elements at a glance कर लेते हैं. चलिए. So let's move ahead and do all the mineral elements at a glance. बहुत interesting, बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है. चलो. So let's continue. So let's start with mineral elements at a glance. शुरू करते हैं हम. Okay. So don't worry. I know how to do it. So we go to HDMI 2 and we come back. Yay! चलिए आइए. So then I just have to click on the pen and nothing else and I need to move it here, which I'm going to do. Right and चलो. So let's start with mineral elements. CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ये क्या क्या करता है? साथ में नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, अगले पेज पे पोटेशियम आ जाएगा. एवरीथिंग इज देयर. बस ध्यान दीजिए. सो CHO क्या करेगा? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएगा. क्या करेगा? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. Protoplasmic constituents. Protoplasm is nothing but the complete inner material. Cytoplasm plus nucleoplasm, the living material is called protoplasm. Structural framework क्या होता है आपका? Cell wall, cell membrane, ये सब क्या है आपका? Structural framework. Are you listening? ये MCQ में आ सकता है. Correct everybody. H plus governs the pH. आपको पता है CO2 combines with water to form H2CO3. The H2CO3 is extremely unstable, breaks down into H plus and HCO3 minus. If H plus increases, the pH decreases. So simple. If your H plus increases, the pH decreases. Right? Oxygen is a terminal electron acceptor. Did I teach you this in respiration? And gets converted to water in respiration. Storage of food in the form of glucose, glycogen. Right, everybody?
अगर CHO नहीं है, ऑब्वियसली सेलुलोज नहीं बनेगा, सेल वॉल नहीं बनेगी, टर्मिनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर नहीं होगा. सो नॉर्मल ग्रोथ जो पौधे की है वो नहीं हो सकती, बिकॉज द कार्बन, द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. कम ऑन एवरीबडी, नो गोइंग एनीवेयर, फुल अटेंशन इन द क्लास. पूरा मिनरल न्यूट्रिशन बॉटनी का इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डूइंग टुडे एंड आई कैन गारंटी 12 मार्क्स. So I want full josh and full attention in my class now. I'm looking at the comments there. Full josh, full attention in my class now. Come on, guys. And all of you who are there, one like, guys. One like. Chalo. Okay, so let's come to nitrogen. Nitrogen is a part of macronutrient. Nitrogen के बारे में आपको पता ही होगा. Nitrogen की cycle इसलिए important है because there's a lot of irony. What is irony? बहुत ही विनोदा भाव. विनोदा एक कोई ऐसा बड़ा ही मजेदार सा वर्ड होता है, पेचीदा मामला है, दैट इन द एटमॉस्फेयर इट्स वेरी हाई नाइट्रोजन, बट द प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी भी नाइट्रोजन की होती है. दैट इज बिकॉज द form which is in the atmosphere cannot be absorbed by the plant and therefore we need to convert it into an absorbable form, जो कि आज मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू करवाने वाली हूं. इट इज रिक्वायर्ड. अब एक बार मुझे चार्ट करने दीजिए. आई एम गोइंग टू मूव टू द साइड आफ्टर दैट सो दैट यू कैन ऑल कॉपी इट. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होता है. द बेस इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. विटामिन्स, हार्मोन्स, कोएंजाइम्स बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है. क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम भी होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नाइट्रोजन नहीं है तो पौधे की हाइट छोटी हो जाएगी, विच इज स्टंटेड ग्रोथ. कोएंजाइम बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड्स बनाएगा. ये सारे के सारे MCQ क्वेश्चन हैं. अगर ये नहीं होगा तो फ्लोरिजन नाम का हाइपोथेटिकल हार्मोन नहीं बनेगा, लेट फ्लावरिंग होगी. क्लोरोसिस का मतलब है येलो हो जाना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर MCQ. ओल्डर लीव्स येलो हो जाएंगे पहले, प्री मेच्योर लीफ फॉल, हरे पत्ते ही या बहुत जल्दी पत्ते गिर जाएंगे. इज दैट क्लियर? साथ के साथ कॉपी करिए. फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. क्या आपको फिर से यहां फॉस्फोरस नजर आ रहा है? शुगर बेस प्लस फॉस्फेट. फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स में ऐड होगा. फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज फॉस्फोलिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनेगा. एंड सम प्रोटीन्स. अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है, पौधा ग्रो नहीं करेगा, रूट्स नहीं ग्रो करेंगी, पौधे में ग्रीन कलर नहीं आएगा. MgSO4 दिया जाता है क्लोरोफिल के लिए, उससे भी ग्रीन कलर आता है, बिकॉज सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम. इट्स अ MCQ क्वेश्चन. जल्दी पत्ते गिर जाएंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? अब मैं एक स्टार मार्क बना देती हूं उन सब चीजों पे जो क्वेश्चन में आए हैं. राइट? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क MCQ क्वेश्चन है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेस्पिरेशन MCQ क्वेश्चन है. अमाइनो एसिड्स MCQ क्वेश्चन है. न्यूक्लिक एसिड्स MCQ क्वेश्चन है. ATP NADP MCQ क्वेश्चन है. करेक्ट. बिल्डिंग ब्लॉक CHO MCQ क्वेश्चन है. स्टंटेड ग्रोथ MCQ क्वेश्चन है. क्लोरोसिस MCQ क्वेश्चन है. ग्रीन MCQ क्वेश्चन है. या तो कॉपी कर लीजिए, स्नैपशॉट खींच लीजिए जल्दी जल्दी. आई एम गॉन टू द साइड ताकि आप लोग ये कर सके. ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी. मैं साइड में जा चुकी हूं सो दैट यू कैन डू इट. कम ऑन, डन. यस एवरीबडी. चलो ठीक है. सो अगर आपने कर लिया है कॉपी तो हम आगे बढ़ते. मैं मिटा दूं, दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर सेइंग रब कर दिया जाए. चलो, सो इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते. आ जाइए पोटेशियम पे. पोटेशियम इज के सल्फर आयरन. एक एक चीज मैं आपको ऐसे डिटेल में करके बताने वाली हूं. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू द इंटायर नाइट्रोजन साइकिल विद यू. आज की क्लास बहुत ऑसम रहने वाली है. 100% डायरेक्ट MCQs विल कम फ्रॉम द क्लास. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू पे अटेंशन इन द क्लास. क्लिक द लाइक बटन नाउ बच्चों, प्लीज. इतना तो अपने टीचर के लिए मतलब बनता ही है. यस एवरीबडी. चलो, सो हिट द लाइक बटन एंड लेट्स एंजॉय द क्लास. पोटेशियम पे आ जाइए. एक्टिवेट्स अबाउट 40 एंजाइम्स. तो अगर पोटेशियम नहीं होगा, एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगी, रेस्पिरेटरी पाथवेज ब्लॉक हो जाएंगे बच्चों. इट इज
associated with potassium sodium pump in active transport. Active transport is when it is against concentration gradient with the help of ATP. So the presence of ATP synthetase is there. Anion cation balance in the cells karta hai, brings about opening and closing of stomata. Common in, yes, this is very very important. पोटेशियम की थ्योरी है, मैं आपको करवा चुकी हूं. I might as well just do it once again with you. Common in cell sap, in plants, vacuoles, and helps in turgidity of cells. What is turgidity of cell? When there is enough water in the cell और वो फूल कर रहता है because of potassium. It's intracellular में अगर रहेगा, solute है, solute will attract solvent and the cell will remain swollen. अगर ये नहीं होगा तो obviously stunted growth होगी. Yellow and shriveled. Shriveled is मुरझाए हुए. When they are, you know, they are a little wilted. मुरझाए हुए. Mottled. Mottled is ऐसा like this, like this, like this. Leaf ऐसा होना चाहिए ना. The leaf is not like this. Leaf is like this, like this. Mottled intervenal chlorosis. Intervenal. That means बच्चों ये आपकी veins है. करेक्ट, ये आपकी वेन्स है. वेन्स के बीच वाला एरिया विच आई एम गोइंग टू मेक विद अ रेड कलर्ड पेन. नाउ पे अटेंशन. ये वाला एरिया अगर येलो कलर का हो जाए, इट्स कॉल्ड एज इंटरवेनल क्लोरोसिस. इंटरवेनल क्लोरोसिस अपियरिंग फर्स्ट, पहले पुराने पत्तों में, एंड प्री मेच्योर डेथ, पौधा जल्दी मर जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? Is that clear everybody? Yes everybody, done. अब आ जाइए आप सल्फर पे. Very important. किस पे आ जाइए अभी आप? सल्फर पे. As a constituent, बेटा methionine, sulfur containing amino acid, everything is linked to one or the other chapter. As a constituent of amino acids, cysteine, which is a MCQ question at least 5 times, methionine, which is a MCQ question at least 20 times, right? And hence some of the proteins present in coenzyme A. तो इन सब में सल्फर होता है. coenzyme A, cysteine and methionine have sulfur, right? Thiamine and biotin, which is very important for here, ये root development को increase कराता है, increases the nodule formation in legumes. लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, राइट? व्हाट आर लेग्यूमिनस प्लांट्स? पी फैमिली. लेग्यूमिनेसी, इनकी रूट्स के पास निफ जीन्स वाले राइजोबियम और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. सो दैट मींस द बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड गिव देम टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड द लेग्यूमिनस प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अंडरस्टूड? तो ये फंक्शन है सल्फर का. इंक्रीजेस रूट डेवलपमेंट, इंक्रीजेस द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या क्या होता है? ऑल ऑफ दिस आई एम गोइंग टू टीच यू इन डिटेल इन टुडेज क्लास. क्लोरोसिस इज येलोइंग, right? Did I just explain to you what is chlorosis? पीला पड़ना. So whenever the chlorophyll pigment of the plant decreases, because of which the plant turns yellow in color, it's called as chlorosis. Chlorosis, like in nitrogen deficient plants, stunted growth is छोटा सा बोना रह जाना. The plant doesn't really grow up to its full potential. It does not attain its full potential. It doesn't grow up to its complete potential. Leaf becomes curly. That's a leaf curl. Less juice content in citrus fruits, reduced nodulation in legumes, etc. So the legumes become reduced. Understood? Chaliye, let's come to iron. Let's come to iron. Is that clear? Needed for the synthesis of chloroplast protein, and so affects the chlorophyll and carotenoid synthesis. This is a MCQ question. Chlorophyll के लिए magnesium पे MCQ आ सकता है, but this is a MCQ question of this. Is that clear? चलिए, full attention. Ferredoxin का part है, cytochromes का part है, which are electron carriers. तो enzyme catalase का part है, right everybody? Ferredoxin reduction system, respiratory enzymes. Intervenal chlorosis, xylem phloem की veins के बीच में chlorosis होगा, young leaves में होगा, single leaf और branch में हो सकता है. due to limited mobility, iron जो है वो बहुत mobile नहीं है. अगर किसी में chlorosis होगा, हो सकता है सिर्फ उस एक leaf में हो. So this is mineral elements at a glance. Potassium, sulfur and iron. Click a snapshot please. Click a snapshot please. Done?
Perfect. Okay, so we've done around 15 minutes of class. Let's move ahead. Come on, guys, and likes now on the page. Let's come to chlorine, nickel, and manganese. इसमें सबसे important, I'll make 2 stars for manganese because it is the most important. So I'm going to make 2 stars for manganese. It's the most important. Chlorine, essential for oxygen evolution in photosynthesis. Oxygen evolving complex, which is a part of photosystem 2, has chlorine. Anion cation balance in cells. Cells के अंदर anion cation balance करता है, chlorine का part है. Is that clear? Nickel, metabolism of urea and urides. Right? पहले ये कर लेते हैं, फिर deficiency कर लेंगे. Activates enzymes of respiration, photosynthesis and nitrogen metabolism की enzymes को activate करता है. Component of oxygen evolving complex. Manganese तो बहुत important है. It's present in photosystem 2. At least 20 times this question has come. Photosystem 2 में manganese, right, involved in oxidation, reduction and decarboxylation reactions during respiration. Redox reactions का part है, decarboxylation reactions का part है. Deficiency symptoms, very important. Bronze color in leaves, chlorosis, necrosis, swollen root tips, फ्लावर एब्सिशन और फॉल डाउन. राइट, तो अगर आपके प्लांट में क्लोरीन नहीं होगा, पत्ते ब्रॉन्ज कलर के हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे. नेक्रोसिस मतलब टिप्स वगैरह, सेल डेथ हो जाएगी, रूट टिप्स स्वोलन हो जाएंगे, द फ्लावर्स विल फॉल डाउन. निकेल की कमी की वजह से लीफ टिप नेक्रोसिस हो जाता है. सो दिस इज द टिप ऑफ द लीफ. The tip will undergo necrosis. Leaf flecking or gray spots due to chlorosis and necrosis in interveinal zones causes gray speck, मतलब gray dot of oat. Marsh spot disease of pea. Very rare but tough question. Very rare but tough question. Come on your screens. Very rare but tough MCQ question. Any doubts? Understanding everybody? चलिए, so इसी के साथ let's move ahead. आज मैंने आपको डिटेल में नाइट्रोजन साइकिल करवानी है, which is very important. So did you understand? ये आपके सारे पॉइंट्स हैं. इनको बहुत छोटे फॉर्म में मैंने आपको लिख कर दिया है, so that you can make small mind maps of these on your own. Is that clear? But ये माइंड मैप्स YouTube के इतने फेमस हो चुके हैं बच्चों, that my regular classes में पढ़ाना मुश्किल हो चुका है विदाउट माइंड मैप्स. Yes, उन सब बच्चों को ये है कि मैम सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप से ही पढ़ाई कराए और कुछ मत कराए. राइट, चलिए, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. I can promise you that you would have never ever seen classes like this. So एक काम करिए, before I move ahead, right, प्लीज इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, जल्दी स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी ले लिया. चलो, सो लेट्स कम टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? अगले पूरे हाफ एन आवर तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट्रोजन साइकिल करवाने वाली हूं, बिकॉज इट इज दैट इंपॉर्टेंट. इसमें से उतने ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो आपने कॉपी कर लिया मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू क्लिक्ड अ फोटोग्राफ. आइए, तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल्स, important than your carbon, your phosphorus, your sewage, everything. It's more important. जो मेरे रेगुलर क्रैश कोरियंस हैं, याद करिए, हमने परसों की क्लास में डिटेल में पूरे का पूरा सीवेज साइकिल किया था. आफ्टर दैट वी डिड 25 क्वेश्चंस. यू रिमेंबर? आई ऑल्सो गेव यू अ लॉट ऑफ होमवर्क और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक किए. दिस साइकिल इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर सीवेज साइकिल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल. सो लेट्स स्टार्ट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. Your biological nitrogen fixation, or let's use a green colored pen, can be divided into 2 steps. First step is there's a little gut, there's a little like a round globule which is formed, जिसको nodule formation कहते हैं. It is inside the node or the nodule that nitrogen is fixed. So this is the most important thing for nitrogen to be
fixed. The second is the real fixation, the chemical part of it. So this is the physical part of it where I'm making a nodule, and this is the chemical part of it wherein I am doing the nitrogen fixation. So let us move ahead and let us then do this in detail. See this beautiful pea family, Papilionaceous. You can even see the arrangement of the flower is Papilionaceous. Very, very, very important. Chaliye aaiye. So let's come to nodule formation. A swelling on a root of a leguminous plant containing nitrogen fixing bacteria. So this is the nodule, and inside the nodule आपके पास एक bacteria होता है, and this bacteria has the ability to fix नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की जीन होती है. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इट्स कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो इसका मिसनोमर है, विच इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया कैन बी फ्री लिविंग, मिट्टी में अकेले पाया जाता है. आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम. बिजरनेकिया हैज कम इन द एग्जाम एटलीस्ट 20 times. It can be symbiotic with plants as well. So free living are aerobic. They require oxygen. Free living aerobic मिट्टी में अपने आप अकेले पाए जाते हैं. Fixing bacteria, example Azotobacter. Remember the names at least 5 times. MCQ questions. Azotobacter and Bijernacea. Chemosynthetic. Nitrogen fixing bacteria, example is D-sulfovibrio. Chemosynthetic. It does not do photosynthesis like blue-green algae. It is chemosynthetic. Symbiotic with plants. Photoautotrophic nitrogen fixing. Photoautotrophic oxygen release करेगा, water breakdown करेगा. Right? Chlorobium photosynthesis. Rhodopseudomonas. Nitrogen fixing blue-green algae. Cyanobacteria is Nostoc. Anabina. So many times MCQ question. Not so much, very important. And anaerobic nitrogen fixing bacteria, for example Clostridium, जो सबसे common leguminous plants में देखा जाता है, it is anaerobic. क्योंकि ये anaerobic होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए leguminous plants में leg hemoglobin नाम का pigment होता है. The leg hemoglobin is an oxygen scavenger. So are you connecting the dots now? You're able to understand. So the leg hemoglobin runs, collects the oxygen and destroys it so that Clostridium can remain there. Clostridium बहुत टाइप्स का होता है. Clostridium perfringens हमारी बॉडी में गैस गैंग्रीन कॉज करता है. Clostridium tetani tetanus कॉज करता है. All of them are anaerobic. This is what I learnt in second year of microbiology, and you remember this. चलो. So these are your nodule formation which can happen with all these bacteria, right? Bacterium rhizobium in association with roots of leguminous plants. A zoo-like aquatic fern है. Once upon a time मेरे garden में अजोला था, फिर transportation में बेचारा गुम हो गया, right? So Anabina azoli कहा जाता है. Paddy fields में होता है. You know paddy fields जब हम चावल उगाते हैं, so it is there in standing water. उसको पानी की जरूरत होती है. चलिए लिखिए इसको. By the time of moving side लिखिए इसको. Very important. So Anabina अजोला जो पाया जाता है वो पैडी फील्ड्स में पाया जाता है. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अगर आप साइकस की बात करो, साइकडेसीज, साइकस, लिविंग फॉसिल, जिम्नोस्पर्म, उसके रूट्स में कोलोरॉइड रूट्स. द रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल. कोलोरॉइड रूट्स, दे कम आउट ऑफ द सॉइल एंड दे हैव एनाबिना नॉस्टॉक. दे कम आउट ऑफ द सॉइल. एनाबिना नॉस्टॉक वहां पाया जाता है. Now conversion of molecular nitrogen of the atmosphere into nitrogen compounds, ये उसका नाइट्रोजन जब फिक्सेशन करना है. अब हम फिक्सेशन पे आते हैं. तो मुझे पता है कि मैंने उस नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना है. नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स. दिस इज द fixation and this was all the ways to do it, all the ways to form nodules. So ये मैंने कर लिया. अब मैं second step of nitrogen fixation step wise कैसे होगा, I'm going to show you in the next slide. Is that clear? तो अभी तक मैंने आपको symbiotic relationship दिखाया, मैंने आपको chemo relationship दिखाया. I told you aerobic, I told you anaerobic. All of these are the various organisms including aquatic Anabina azoli, जिनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. नाउ वी आर गोइंग इनटू नाइट्रोजनेज एंजाइम, डिटेल स्टेप बाय स्टेप कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. इंडिविजुअल स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं. So step 1, step 2, step 3, step 4 of nodule formation and then nitrogen fixation. Nodule, आपको पता चल गया nodule क्या है? Nodule is like a gola. It's like a gut in the roots in which the bacteria is there, absorbing the
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और उसको किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है विच इज यूजेबल. व्हाट इज अ नोड्यूल? नोड्यूल इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन द रूट्स जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है एंड द बैक्टीरिया इज एब्सॉर्बिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ फॉर्म विच इज यूजेबल. कम ऑन गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Say yes or no. Are you understanding? Nodule formation कर रहे हैं where there is going to be a gut. Are you understanding this? If you are understanding, I want a like on my page now. Come on guys, without any further delay. जल्दी अभी के अभी. Are you understanding? Cool. चलो. स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 कैसे होगा? प्लांट रूट्स, ये इतना ऑसम एक्सप्लेनेशन है, इतना ऑसम एक्सप्लेनेशन दैट यू विल बी लाइक वाओ. इतने डिटेल में आपका एक भी एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है. चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू. प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो फ्लैविनॉइड्स एमिट करती हैं दैट बाइंड टू रिसेप्टर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कंपैटिबल सॉइल राइजोबियम. इट इज लाइक, आपने वो एक मूवी देखी, एक एडवर्टाइजमेंट देखी जो मम्मी किचन में कुछ खाना बना रही होती है और बच्चे सारे क्रिकेट खेल रहे होते, घर नहीं आते, एमडीएच मसाले की एड है, तो मम्मी जैसे ही तड़का मारती है सारे बच्चे भाग के घर. हैव यू लुक्ड एट दैट एडवर्टाइजमेंट? इजंट दैट लाइक अ रियली कूल एडवर्टाइजमेंट? सो सिमिलरली जो प्लांट के रूट्स हैं, स्टेप नंबर 1 से करते हैं. प्लांट के रूट्स ने फ्लैविनॉइड किया. दिस फ्लैविनॉइड इज लाइक अ मसाला एंड द राइजोबिया आर लाइक द किड्स हु विल कम रनिंग. अगर मम्मी ने घर में पानी पूरी बनाई है या समोसे बनाए, द किड्स कम रनिंग. In response to flavonoids, rhizobia बदले में rhizobia secrete करेगा nod factors that bind to the receptors in the membranes of the host plant root hair cells. ये आपका root hair cell है. इसकी outermost covering को एपिब्लेमा कहते हैं. फ्लैविनॉइड्स की खुशबू सूंघकर द बैक्टीरिया secreted nod factors which bind to the membrane of the roots. I repeat that again. So this is your rhizobia. The rhizobia secrete flavonoids. Is that clear? The rhizobia gets attracted to flavonoids which are secreted by the root, and badle mein the rhizobia secreting nod factors. What is it secreting badle mein? Nod factors. Receptor binding causes entry of calcium into root hair cell. So जैसे ही वो अटैच हुआ, so rhizobia secretes nod factors. Nod factors जो आपके हैं वो रिसेप्टर से चिपक गए. नॉड प्लस रिसेप्टर इन द मेम्ब्रेन. जैसे ही नॉड प्लस रिसेप्टर चिपका, सो प्लांट ने फ्लैविनॉइड सिक्रीट किया. प्लांट के फ्लैविनॉइड के बदले में बैक्टीरिया ने नॉड सिक्रीट किया. नॉड आपके प्लांट के रिसेप्टर पे चिपका और जैसे ही ये प्लांट के रिसेप्टर पे चिपका, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू रूट हेयर सेल हो गया. कैल्शियम जैसे ही रूट हेयर सेल के अंदर एंटर किया, कम ऑन गाइस, आई एम लुकिंग एट योर ऑसम कमेंट्स, कम ऑन. कैल्शियम जैसे ही एंटर किया, स्वेलिंग हो जाएगी रूट हेयर सेल की. राइट, रूट हेयर सेल की स्वेलिंग होगी और वो घूमने लगेगा, कर्ल. बट बात यह है, कर्ल के बीच में होगा राइजोबिया बैक्टीरिया. सो आई रिपीट फ्रॉम इट अगेन. रूट्स ने सिक्रीट किया फ्लैविनॉइड. फ्लैविनॉइड के बदले में राइजोबिया ने सिक्रीट किया नॉड फैक्टर्स. नॉड फैक्टर्स रिसेप्टर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट से चिपक गए. जैसे ही वो नॉड फैक्टर्स, आई रिपीट सो मेनी टाइम्स, जैसे ही नॉड फैक्टर्स रिसेप्टर्स ऑफ प्लांट मेम्ब्रेन से चिपके, कैल्शियम एंटर्स. कैल्शियम एंटर करने की वजह से रूट स्वेल होके कर्ल करेगी. कर्ल के बीचों बीच there is going to be rhizobia, and यहां पर infection शुरू हो गई, rhizobia, and then the infection will start to spread as infection threads. Rhizobia will start to enter inside. Where is the pen here? Right, rhizobia will start to enter inside and rhizobia will start fixing nitrogen जो वो vascular tissues को जाकर दे देगा. सो राइजोबिया विल स्टार्ट टू फिक्स नाइट्रोजन जो वो इंफेक्शन थ्रेड्स के थ्रू नाइट्रोजन सारा वैस्कुलर टिश्यू को सप्लाई कर देगा. इज दैट क्लियर? सो फाइनली आपके जो प्रोटीन्स होंगे, कुछ इन प्रोटीन्स को हम नोड्यूलिन्स कहते हैं. देखो लिखा भी है, राइट. इससे रूट कॉर्टेक्स वगैरह स्वेल हो जाता है. कॉर्टेक्स स्वेल करके बड़ा बड़ा गोला बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज नोड्यूल्स. नोड्यूल ऑक्सिन से भी, नोड्यूल इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्टिकल सेल. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन सब आएंगे वहां, ताकि रूट के नोड्यूल वाले एरिया में बहुत सेल डिवीजन हो. इट बिकम्स रियली बिग. राइजोबिया नोड्यूल के बीच में उसको
को इन्वेड कर देता है एंड राइजोबियम और प्लांट के सेल्स मिलकर एक बड़ा सा नोड्यूल बना लेते हैं एंड देन इट स्प्रेड्स राइट अप टू द वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में राइजोबियम नाइट्रोजन सप्लाई करना शुरू कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नोड्यूल के पास राइजोबियम वगैरह है, नोड्यूल बिकम्स पिंक बिकॉज इनसाइड इज ऑक्सीजन रेगुलेटिंग। नोड्यूल पिंक कलर का है बिकॉज नोड्यूल के पास लेग हीमोग्लोबिन है। That is why the nodule is pink in color and leg. Or can you see the infection threads? Black color से लिखती हूँ. Can you see the infection threads going inside? Come on guys. And क्यों pink color का है? Because leg hemoglobin जो होता है, आपको पता होना चाहिए, leguminous hemoglobin, it's an oxygen scavenger and protects the nitrogen fixation वाली enzyme nitrogenase, जिसके बारे में बात करूंगी। नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन फिक्स करेगी। अगर नाइट्रोजिनेज नहीं है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, पर नाइट्रोजिनेज कैन नॉट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ, यू गॉट इट राइट, ऑक्सीजन। तो पूरा स्टेप बताओ एक बार, पूरा डिटेल में। कम ऑन गाइस, हिट लाइक नाउ, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। चलिए जल्दी। सबसे पहले प्लांट ने फ्लैविनॉइड सिक्रीट किया, फ्लैविनॉइड से राइजोबियम अट्रैक्ट हुआ, राइजोबियम ने बदले में नॉड फैक्टर सिक्रीट किए। द नॉड फैक्टर्स बाइंड टू द मेम्ब्रेन। व्हेन द नॉड फैक्टर्स एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट जॉइन, कैल्शियम इज रिलीज्ड। विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम द प्लांट सेल्स स्वेल अप and start to curl. When it starts to curl, बीच में फंस जाएगा राइजोबियम. The rhizobium goes inside, auxin and cytokinin is secreted, it develops into a node. The node needs to become pink in color because there is leg hemoglobin, which is an oxygen scavenger. You don't need oxygen because this entire thing needs to happen in the presence of an enzyme called nitrogenase, जो nitrogen fix करेगा. And nitrogenase hates oxygen, just like we hate physics or maths or both. I think both. Yeah? Oh, whatever. Chalo, let's move ahead. Finally, the nodule will develop, which will send all the nitrogen fix to the vascular tissue. Now, let's come to the nitrogenase enzyme. See? Any doubts still? आ जाइए आप नाइट्रोजनेज एंजाइम पे। बहुत ही ज्यादा ऑसम कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजनेज एंजाइम का, बहुत ही ऑसम कॉन्सेप्ट। चलो, सो लेट्स मूव टू नाइट्रोजनेज एंजाइम। नाइट्रोजनेज एंजाइम ही इवेंचुअली हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करेगी, तो हम इसको इस कॉर्नर में रख देते हैं, ठीक है ना। चलो, nitrogenase. Nitrogenase is an enzyme that fixes the atmospheric nitrogen into ammonia. क्योंकि जो आपका atmospheric nitrogen है ये unusable form में है, the plant cannot use it, and the ammonia or the later on products of ammonia are the usable form. So इस nitrogenase enzyme के इतने awesome mind maps है. Can you see them? Come on guys, I'm reading your comments. Can you see them? कितने awesome slides है. It's a 2-component protein. So can you see a ferrous molybdenum protein and a ferrous protein? इसके 2 components है. Can you all see the 2 components there please? Ferrous molybdenum protein and a ferrous protein. Ferrous molybdenum binds substrate and reduces H plus and N2 to H2 and ammonia. Reduction. Oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. जिसमें आपने H ऐड कर दिया, उस चीज को आपने रिड्यूस कर दिया. Ferrous protein receives electrons from ferredoxin, hydrolyzes ATP, breaks it down, reduces the ferrous and molybdenum protein. बड़ा सिंपल, एक बार ध्यान से यहां देखो, या इससे भी पहले मैं आपको इसका एक और मेरे पास बड़ा वाला डायग्राम है वो दिखाती हूं, एंड देन आई विल ब्रिंग यू बैक हियर सो दैट एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर. ये देखिए, सो इजी. ये रही आपकी एंजाइम नाइट्रोजनेज. कम ऑन, एक काम करो, इससे पहले कि आई डू दिस, आई एम गोना गो टू द साइड. चलिए इसकी आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए. ले लिया आप लोगों ने इसका स्नैपशॉट? आ जाइए अभी, कम बैक. अब देखिए इसको हम बीच में रख देते हैं. कैन यू सी द नाइट्रोजनेज एंजाइम? और इसके देखो ये 2 पॉइंट्स है जहां पर कुछ भी अटैच कर सकता है. सी, ये 2 पॉइंट्स है जहां पर कुछ अटैच कर सकता है. सो अटैच क्या करेगा? नाइट्रोजनस गैस. देखिए आकर लग गई. बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, नाइट्रोजनस गैस विच इज सबस्ट्रेट, जिसको कन्वर्ट करना है, स्टेप 1 है. साथ में जैसे ही नाइट्रोजन एंजाइम लगी, आप देख रहे हो 2 H लग गए. इज दिस स्टेप रिडक्शन? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला कि जब भी आप किसी चीज में H ऐड करोगे, NADP को जब आप NADPH में कन्वर्ट करते हो, वी कॉल इट रिडक्शन. राइट एवरीबडी? एक बार 2 H लगे, 2 और लगे,
प्लस 2H लग गए, तो कैन यू सी डाइमाइड N2H2 और 2H लग गए, N2H4 हो गया। कैन यू सी दैट रिडक्शन हाइड्रोजीन बन गया, राइट। फाइनली इंजाइम आपको हमेशा पता है इंजाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड, वैसे के वैसे बाहर आ गई। सी इंजाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड और प्रोडक्ट क्या बन गया आपका 2 H's 1 2 3 4 5 6, राइट। अमोनिया NH3 NH3, is that clear everybody? Step 1 is attachment of nitrogenase enzyme to nitrogen, weakening of the bonds। क्या आपको यहां डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? तो जब ये लगेगा, देखो सबसे पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड से शुरू किया, दैट्स द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू, इट्स वेरी वेरी इजी। ट्रिपल बॉन्ड, यू ब्रोक अ बॉन्ड, एक एक H पे जोड़ दिया, वन मोर बॉन्ड, दो दो H पे जोड़ गया। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो तीन तीन H लग जाएंगे, एक N पे, ट्रिपल बॉन्ड है ना। सो फर्स्ट इज दो बॉन्ड हो गए और H, सेकंड एक और बॉन्ड टूटेगा, एक और H, और फाइनली ये, तो ये बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग एंड वी कन्वर्टिंग इट इनटू ammonia. This is the function of nitrogenase enzyme. I hope it is crystal clear to you. जिनको आज ये पहली बार समझ में आए, come on, hit like button. राइट तो पहले नाइट्रोजनेज एंजाइम N2 लगेगा, फिर उसके बाद वीकनिंग ऑफ बॉन्ड होगा, पहला H, दूसरा H एंड थर्ड पेयर ऑफ H विल अटैच, सो यू विल कन्वर्ट N ट्रिपल बॉन्ड N टू NH3 एंड NH3 बाय सब्सिक्वेंटली एडिंग नाइट्रोजन को H के साथ ऐड करोगे। डन। चलिए, सो मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन साइकिल, अब मैं आपको पूरी इसकी साइकिल करा देती हूं। नाइट्रेट डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या है? इट्स वेरी सिंपल। कैन यू सी द वन पार्ट देयर, अमोनिफिकेशन पार्ट, नाइट्रिफिकेशन पार्ट, डीनाइट्रिफिकेशन पार्ट। इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, nitrification, denitrification, because whatever we have taken from the atmosphere, it is a cycle. We need to release that back into the atmosphere also, otherwise the cycle will be disbalanced. This is exactly what is happening in carbon cycle. We are exhaling far too much of carbon dioxide. It's increasing in the atmosphere, causing global warming. As simple as that. आइए, so आ जाइए आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, बड़ा ही सिंपल है, मजा आएगा, अच्छे से बैठ के सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया act upon the nitrogenous waste and proteins of dead bodies of organisms. Proteins are broken down into amino acids which are deaminated to release organic acids, are used by microorganisms for their own metabolism. मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना ज्यादा, ये अमोनिफिकेशन का स्टेप है आपका, अमोनिया, राइट। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल है, राइट, जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, भले ही प्लांट है, एनिमल है, उसकी बॉडी में से प्रोटीन्स ऑफ डेड बॉडी को ब्रेक डाउन किया जाता है अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड को डीअमाइनेट किया जाता है, अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है, राइट। एंड इनसे जो अमोनिया वगैरह रिलीज होता है वो बैक्टीरिया अपने लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये आर्टिफिशियल प्लैटिनम पैलेडियम क्रिस्टल की वजह से भी हम कर सकते हैं इन द इंडस्ट्री। जब हम यूरिया बनाते हैं तो आर्टिफिशियली करते हैं, बट बैक्टीरिया कैन डू इट नेचुरली ऑल्सो। इज दैट क्लियर? ह्यूमस वो चीज होती है विच स्टोर्स द ऑर्गेनिक मटीरियल, बहुत डिफिकल्टी के बाद डिग्रेड होती है। बहुत पहले मैंने इकोलॉजी का लेक्चर लिया था तो मैंने किया था। सो ऑल द डेड बॉडीज, ऑल द डेड डिकेइंग मटीरियल, ऑल द लिटर इज लाइंग इन द सॉइल, उसमें से कई चीजें बहुत टाइम लेती हैं डिग्रेड होने में, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ये जो H प्लस फ्रॉम द सॉइल होता है, ये अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब ये जो अमोनिया है, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करना नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और फाइनली इसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट फॉर्मेशन नाइट्रोसोमोनास से होता है, एटलीस्ट 20 टाइम्स एमसीक्यू क्वेश्चन। नाइट्रेट फॉर्मेशन नाइट्रोबैक्टर से होता है, राइट एवरीबडी। नाइट्राइट फ्रॉम नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रेट फ्रॉम नाइट्रोबैक्टर। फाइनली जो नाइट्रेट है
इट इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसको रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर कर देगा, बिकॉज ये साइकिल है. नाइट्रेट्स आर रिड्यूस टू गैसियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, वापस सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, ये उसको वापस रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर कर देंगे. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? सो ये रहा नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अमोनिया, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, और नाइट्रेट जो अब बचा हुआ है उसको कई बार हम वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते. इतनी सी बात है सारी. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग गाइज? इज इट क्लियर? राइट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, तो अब हम मिलेंगे कल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. यस, चलिए, बाय किड्स.